I extend a heartfelt welcome to our guest of honor, Dr. Abdul Subhan, Chairman of Falcon Group of Institutions, Dr. Kalimullah B, our school director, Muhammad Usman Sharif, Assistant Director of our school, Mrs. Nikhat Aisha, Secretary of our school. I invite all the dignitaries to come forward and light the ceremonial lamp. I request Gopal sir to come forward for inaugural song. ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ ಕರುನಾಡ ದೀಪ ಸಿರಿನುಡಿಯ ದೀಪ ಒಲವೆತ್ತಿ ತೋರುವ ದೀಪ ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ಮೈಮರೆವೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಕೊಳೆಯ ಕೊಚ್ಚೇವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕಂಪು ಸೂಸಲು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕರಣ ಚಾಚೇವು ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ಮೈಮರೆವೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಕೊಳೆಯ ಕೊಚ್ಚೇವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕಂಪು ಸೂಸಲು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕರಣ ಚಾಚೇವು ನಡುನಾಡೆ ಇರಲಿ ಗಡಿನಾಡೆ ಇರಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕಳೆಯ ಕೆಚ್ಚೇವು ಮರೆತೇವು ಮರೆವ ತೆರೆದೇವು ಮನವ ಎರೆದೇವು ಒಲವ ಇರಿ ನೆನಪ ನರ ನರವನೆಲ್ಲ ಉರಿಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸದು ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಣ್ಣು ಅರಿವನ ಕಸಾಲು ದೀಪಗಳ ಬೆಳಕ ಬೀರೇವು ಹಚ್ಚಿರುವ ದೀಪದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ರೂಪ ಅಚ್ಚಳಿಯದಂತೆ ತೋರೇವು ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಣ್ಣು ಅರಿವನ ಕಸಾಲು ದೀಪಗಳ ಬೆಳಕ ಬೀರೇವು ಹಚ್ಚಿರುವ ದೀಪದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ರೂಪ ಅಚ್ಚಳಿಯದಂತೆ ತೋರೇವು ಗಡಿನಾಡೆ ಇರಲಿ ನಡಿನಾಡೆ ಇರಲಿ ಒಮ್ಮಿರಲು ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲಿನದು ಭೀತಿ ನಾಡೊಲವೇ ನೀತಿ ಇಡಿ ನೆನಪ ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ ನಮ್ಮವರು ಗಳಿಸಿದ ಹೆಸರುಳಿಸಲು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಗೂಡೇವು ನಮ್ಮೆದೆಯ ಮಿಡಿಯುವ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತೆಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೇವು ನಮ್ಮುಸಿರು ತೀಡೇವು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಗೀತ ಹಾಡೇವು ತೊರೆದೇವು ಮರುಳ ಕಡೆದೇವು ಇರುಳ ಪಡೆದೇವು ತಿರುಳ ಇರಿ ನೆನಪ ಕರುಳೆಂಬ ಕುಡಿಗೆ ಮಿಂಚನ್ನೆ ಮುಡಿಸಿ ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ ಕರುನಾಡ ದೀಪ ಸಿರಿನುಡಿಯ ದೀಪ ಒಲವೆತ್ತಿ ತೋರುವ ದೀಪ ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir. Thank you, all the dignitaries. Now, I would like to invite guest of honor, Dr. Abdul Subhan, Chairman of Falcon Group of Institution, to say a few words. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning, I guess. How are you all? Good morning, everybody here. I don't see, I don't hear. Good morning. Okay, good. First of all, I request all the parents to give a big round of applause. पूरे बच्चों के लिए तालियां मारिए, क्योंकि ये बच्चे जो मेहनतें करते हैं ना, एक आधे घंटे की मेहनत नहीं होती, एक दिन की मेहनत नहीं होती, बहुत मेहनतें करते हैं और आके आप तमाम के सामने ठहरते हैं. उसके साथ साथ give a very big round of applause for the management of the school, क्योंकि जितने भी चीज़ें मैं देख रहा था, whatever I was seeing, अल्हम्दुलिल्लाह, I'm so glad, क्योंकि अपने बच्चों के लिए जो सोचता है, अपने बच्चों के लिए क्या सोचते हैं कि मेरे बच्चे सबसे अच्छा हासिल करें, मेरे बच्चे सबसे आगे की टेक्नोलॉजी हासिल करें, मेरे बच्चों के लिए सबसे अच्छी एजुकेशन हो, ये तमाम तर चीज़ें ये सोच रहे हैं आप तमाम के बच्चों के लिए. Once again give a round of applause for them. बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, ख़ास तौर पे आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, क्योंकि इस एरिया को मैं बहुत ट्रैवल करता था 2015 में. 2015 में मेरी ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन शुरू करूँ, कॉलेज शुरू करूँ. मैं बेंगलोर आया 2014. उससे पहले मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में था. लंदन से पढ़ाई करने के बाद
मैं वहाँ पे ज्वाइन किया। मैं इंडिया का सबसे यंगेस्ट एवर एडवाइज़र जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में काम करता था। तमाम चीज़ें मुझे बहुत बड़ी ख्वाहिश थी, बहुत बड़ा ख्वाब था कि मैं वर्ल्ड बैंक में काम करूं, मैं IMF में काम करूं, क्योंकि मेरी एजुकेशन वैसी हुई थी। मैं पॉलिसी प्लानिंग का एक्सपर्ट था और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की प्लानिंग के लिए मैं काम करता था। लेकिन एक हादसा हुआ मेरे साथ, एक मौका हुआ कि मुझे बेंगलोर आने का मौका मिला। एक साहब मुझे बोले कि सर आप बहुत यंग एज में, दैट टाइम आई वाज 23-24 ईयर ओल्ड, एक 23-24 ईयर का बच्चा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में काम कर रहा है। ही हैज़ अचीव्ड सो मच, वी आर हियर टू ऑनर यू। हम आप तमाम का हम आपका हिम्मत अफजाई के लिए यहाँ पे आपको बुलाए हैं। एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम के लिए मुझे बुलाया गया था। वो बोले मुझे कि एक इंसान, जो मेरी बात कर रहे थे, कि एक इंसान अगर अपने ख्वाबों को पूरा करे तो क्या हो सकता है, कि मेरे अब्बा खुश होंगे, मेरे अम्मी खुश होंगे, बड़ा ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख़ानदान वाले खुश होंगे, उससे ज़्यादा क्या हो सकता है, मेरे एरिया वाले खुश होंगे, नेबर्स, पड़ोस वड़ोस। क्या आपकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा क्या आपकी ज़िंदगी का कोई बड़ा मकसद है? वो मुझे बोले कि मैं आपको कहीं बेंगलोर के कोई एरियाज़ को ले जाना चाह रहा हूँ। मुझे दिल्ली जाना था। मैं बोला मेरी फ़्लाइट है रात में। बोले कि नहीं, हम एक मौका दीजिए हमको, वी वांट टू टेक यू अराउंड। तो जनाब मुझे ज़बरदस्ती बेंगलोर के शिवाजी नगर के एरिया के अंदर की गलियों को ले गए। मैं बेंगलोर में ऑलमोस्ट 5 इयर्स तक पढ़ाई किया था। आई वॉज स्टडिंग इन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। एक 5 साल के लिए मैंने लॉ कंप्लीट किया, फिर मैं लंदन गया। उस वक्त मैं कभी शिवाजी नगर या किसी एरियाज़ में कभी गया था नहीं, क्योंकि मेरे लिए बेंगलोर मतलब कोरमंगला, HSR लेआउट, मैं वहीं पर रहता था। तो पहली मरतबा मुझे मौका मिला कि मैं शिवाजी नगर जाऊँ, और मेरी ज़िंदगी उस वक्त के लिए बिल्कुल हल्के रह गई कि कैसे हो सकता है। पूरी दुनिया का बेंगलोर आज सेंटर है टेक्नोलॉजी की लेके। बेंगलोर को इंडिया का सिलिकॉन वैली बोलते हैं। पूरे इंडिया के सबसे ज़्यादा स्टार्टअप बेंगलोर में हैं। और मुझे बता रहे थे कि ये गली देखिए, ये गली देखिए, यहाँ पे कोई बच्चा स्कूल जाता नहीं है। स्कूल चुप नाम के लिए बच्चे जाते हैं। एक स्कूल का इशारा करके बोले कि गवर्नमेंट का एडेड स्कूल है, बच्चे नहीं पढ़ते। पेरेंट्स को क्या लगता है कि हमारी दुकान है, हमारा बच्चा हमारी दुकान में बैठेगा, पढ़ने से क्या होता है। मैं 2014 की बात कर रहा हूँ। मैं शौक था कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं बोला कि ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि सबका कहना यह था कि पढ़ाई कैसे करेंगे, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर का बच्चा ही डॉक्टर बन सकता है। IIT का तो कॉन्सेप्ट भी नहीं था। IIT बोलते तो लोगों को लगता था कि ITI की बात कर रहे हैं। तो मैं बोला कि किसी ना किसी को कुछ ना कुछ करना है। मेरे दिल में वो फिक्र थी। आई वॉज लिटरली डिस्टर्ब्ड कि कैसे इन हालात को बदलें, क्योंकि मेरा मानना ये है कि आई यूज्ड टू बिलीव कि इफ़ देर इज़ एनीथिंग विच यू कैन डू, अगर आप अपने से कुछ कर सकते हैं हालात को बदलने के लिए, अगर आप नहीं करें तो ऊपर वाला आपको सवाल करेगा। मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। मैं वहाँ से निकल गया, दिल्ली चला गया। नेक्स्ट वीक मेरी शादी थी। अब शादी हुई, वलीमा हुआ, मैं वलीमे करके रात में घर आया और सोने की कोशिश कर रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैं वालिद साहब को बोला कि मुझे एक बहुत ज़रूरी काम से बेंगलोर जाना है। बिल्कुल मिडल ऑफ द नाइट शादी किया हुआ, एक दिन ही हुआ है। बीवी को लेके मैं बेंगलोर आया। सबसे बड़ी फिक्र ये थी कि मेरी बीवी को मैं कहाँ पे रखूँगा बेंगलोर में, क्योंकि मैं मेरे वालिद की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आया था। क्योंकि मेरे वालिद की मर्ज़ी क्या थी कि मैं दिल्ली में रहूँ, मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स में रहूँ, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बनूँ। और मैं वो सब छोड़ छाड़ के यहाँ पे एक इदारा, एक इंस्टीट्यूशन शुरू करने के लिए बेंगलोर आया। कोई मेरा रिश्तेदार ये शहर में नहीं था, कोई मेरा दोस्त इस शहर में नहीं था, लेकिन एक चीज़ थी कि जज्बा था, एक फ़िक्र थी और ऊपर वाले के ऊपर भरोसा था। दैट इफ़ यू डू द एफर्ट्स, राइट एफर्ट्स विद द राइट इंटेंशन, रिजल्ट्स विल कम। 2014 में एक इंस्टीट्यूशन मैं शुरू किया शिवाजी नगर में, क्योंकि वो बिल्डिंग बंद थी करीब 15 साल से। वो मुझे बिल्डिंग रेंट पे दिए, 3 महीने की रेंटल हॉलीडे पे, इसीलिए वो बिल्डिंग लिया मैं। और मैं वो बिल्डिंग में एक
सिर्फ एक रूम था, एक क्लासरूम था, वो एक क्लासरूम से इंस्टीट्यूशन शुरू हुआ। लेट मी टेल यू कि मकसद क्या था और क्या हुआ। जब पहला एडमिशन नहीं हो रहा था तो मैं कर्नाटका मुस्लिम ऑर्फनेज डिकन्सन रोड गया। वहाँ पे पूछा उनको कितने बच्चे हैं उनके पास। वो बोले कि हमारे पास 10th में 3 बच्चे हैं, उसमें से 2 बच्चे फेल हो गए और 3rd बच्चा है जो 3rd क्लास में पास हुआ है। अब मुझे एडमिशन होना था। मैं बोला कि मुझे तीनों बच्चे दीजिए, वो जो 10th में फेल हुए हैं वो बच्चों को मैं पास करूँगा और जो तीसरा बच्चा है उसको भी मैं अपने पास रखूँगा 2 साल के लिए। वो बोले कि तुम कौन है, हम वाई शुड वी गिव आवर इनमेट्स टू यू। मैं बोला कि कुछ मैं भरोसा नहीं दिला सकता आपको, वादा नहीं कर सकता, सिर्फ ये वादा कर सकता हूँ कि मैं ये बच्चों के लिए 2 साल के लिए माँ बनूंगा और बाप बनूंगा और उनके साथ रहूंगा, उनके लिए ख्याल करूंगा। 108 साल पुराना इंस्टीट्यूशन है मुस्लिम ऑर्फनेज। इसके 108 साल में कभी कोई बच्चा प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन नहीं लिया था। ये फर्स्ट 3 बच्चे जो मेरे पास एडमिशन लिए थे, ये फर्स्ट 3 बच्चे 108 साल की हिस्ट्री में पहले 3 बच्चे बने जो प्रोफेशनल कॉलेज में फ्री एडमिशन लिए। मेरे पास फर्स्ट बैच में 13 बच्चे थे। 13 बच्चों में से 9 बच्चों को गवर्नमेंट की MBBS सीट हासिल हुई, फ्री MBBS सीट। पूरे बेंगलोर की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कैसे हो सकता है कि कोई बच्चा जिसकी अम्मी अब्बा डॉक्टर नहीं है खट से डॉक्टर बन गया। 13 बच्चे में से 9 बच्चे डॉक्टर। दूसरा साल एडमिशन भर गए कॉलेज में, जगह नहीं थी। दैट इज़ व्हेन मैं अपने कॉलेज को शिफ्ट किया दारुसलाम में। दारुसलाम क्वींस रोड पे जो छत के ऊपर है वहाँ पे कॉलेज का एडमिशन शुरू किया। बिल्डिंग नहीं थी, वो टिन शेड है, लेकिन 200 लोग एडमिशन कराए। 11th स्टैंडर्ड में 200 लोग एडमिशन कराए। क्यों, सबको क्या था, अरे बाप रे ऐसा कैसा रिजल्ट आ गया। और मैं बोलता कि यहाँ पे कॉलेज बनेगा, ये छत के ऊपर 1 जून से कॉलेज शुरू होना था। हो गई, एक पेरेंट बच्चों को छोड़ने के लिए आ गए, मैं रोड के ऊपर ठहरा हुआ था कि वो ऊपर जो शेड डलना था, शेड नहीं डला। 10 दिन का टाइम दीजिए, 10 दिन के बाद शेड डलेगा, फिर आपके बच्चों को आप 11 जून को छोड़ के जाइए। परेशान पेरेंट, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बेंगलोर वालों का। और ये तनी संद्रा की एक स्टोरी बोलने वाला हूँ। उसी में से एक स्टोरी है तनी संद्रा के एक बच्चे की कि 11 जून से क्लासेस शुरू हुए क्वींस रोड में दारुसलाम में। और यकीन मानिए मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि यहाँ पे बच्चों को और पेरेंट्स को कैसे भरोसा दिलाएं कि उनके बच्चे भी कुछ कर सकते हैं। मैं बहुत फिक्र करता था कि कैसे, हाउ कैन वी कन्विंस देम दैट देयर चिल्ड्रन आल्सो कैन गेट इनटू IIT, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं कोई बच्चे को IIT में जाते हुए। उन्होंने किसी बच्चे को फ्री MBBS सीट जस्ट विदाउट गोइंग फॉर एनी कोचिंग ट्यूशन MBBS करते हुए देखा नहीं है। तो मेरा मकसद था कि कैसे उनको मैं हिम्मत दिलाऊं, कैसे उनको, हाउ कैन आई गिव देम दैट कॉन्फिडेंस। तो मैं कर्नाटक के हर गांव गया, हर तालुका गया, हर डिस्ट्रिक्ट गया। I conducted 100 programs in Karnataka with one message कि anybody and everybody can do anything and everything। क्योंकि मैं मेरी ज़िंदगी में जो कुछ हासिल किया हूँ, मैं मदरसे का स्टूडेंट हूँ, मैं मदरसे से ड्रॉप आउट हुआ बच्चा हूँ, मैं उर्दू मीडियम का बच्चा हूँ। एक उर्दू मीडियम का बच्चा दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ सकता है और वहाँ का टॉपर बन सकता है तो एनीबडी कैन डू इट। लेकिन मैं ये ख्वाब दूसरे बच्चों तक कैसे पहुँचाऊँ, ये मकसद से मैं पूरा कर्नाटक गया और बच्चों को सेलेक्ट करके लेकर आता था यहाँ पे। तो पहले साल से 2014, 2015, 2016 हर साल ऐसे रिजल्ट्स आते गए। यहाँ पे जब मैं कर्नाटक का टूर कर रहा था तो एक वालिदा मेरे पास आई, बोली मैं गौरीपेट गांव से हूँ सर, आपके एक प्रोग्राम में बैठी थी। आई वॉज पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम। वो गांव गौरीपेट कोलार के गांव में मैं आपके प्रोग्राम का हिस्सा थी। मेरी रिसेप्शनिस्ट बोल रही थी कि ये वालिदा जो है आपके रिसेप्शन में बहुत देर से बैठी है, सुबह से बैठी है औरत, दोपहर हो गई है, मैं बोल रही हूँ आपके पास अंदर जाने के लिए, वो जा नहीं रही। मैं बोला था क्यों नहीं जा रही। मैं बाहर आया, वो औरत को अंदर लेके आया। वो औरत बोल रही थी कि हिम्मत नहीं हो रही कि मैं आपके कैबिन में आऊँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरे दोनों किडनी फेल है, मेरे 2 बेटे हैं,
एक बेटे को मैं गवर्नमेंट डिप्लोमा कॉलेज में एडमिशन दिलाई थी 1,500 रुपये की फ़ीस पे। वो गलत दोस्तों के चक्कर में रोड पे आ गया है। अब मेरे ज़िंदगी का एक ही सहारा है, मेरा छोटा बेटा। उसके लिए मैं आपके पास आई हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही कि आपके अंदर कैसे आऊँ, आपके कैबिन में कैसे आऊँ। किसी वजह से मैं वो औरत का एडमिशन दिया क्योंकि वो रो रही थी और मैं बच्चे से मिला था भी नहीं उस वक्त। मैं जब क्लासेस में जा रहा था तो बच्चा एक कोने में बैठ के रो रहा है, बोल रहा है कि सर मैं गवर्नमेंट कन्नड़ा मीडियम का बच्चा हूँ, मेरे को इंग्लिश समझ में नहीं आती, यहाँ पे टीचर्स जो कुछ पढ़ा रहे हैं वो इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। अब वो बच्चा जो इंग्लिश नहीं जानता, जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, वो बच्चा बोल रहा है कि मुझे पढ़ना नहीं है। मेरा भाई डिप्लोमा कर रहा है, मैं भी डिप्लोमा करूंगा जाके गाँव को, मुझे जाना है यहाँ से। मैं बोला क्यों जाना चाह रहा है? तो वो बच्चा बोला कि मेरी माँ के दोनों किडनी फेल हैं, उसको बहुत दर्द होता है, शी हैज़ लॉट ऑफ पेन एवरी नाइट, वो मर रही है सर। तब मुझे याद आया, अरे वो वही औरत का बेटा है। मैं बोला कि बेटा तू घर जाएगा क्या करेगा? माँ के पास रहूँगा, माँ की खिदमत करूँगा। क्या खिदमत कर सकता है अपनी माँ की? पैर दबाऊँगा, उससे ज़्यादा क्या कर सकता है? मैं क्या कर सकता हूँ सर? उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकता। मैं बोला कि तू अपनी ज़िंदगी में एक मकसद पैदा कर कि अपनी माँ का इलाज करने वाला बन। तो बच्चा पूछा मैं कैसे इलाज कर सकता हूँ? आई टोल्ड हिम कि बेटे तू डॉक्टर बन और अपनी माँ का इलाज कर। वो बच्चा पूरी क्लास को ज़ोर ज़ोर से रो रो के चिल्लाना शुरू किया, मैं कैसे डॉक्टर बन सकता हूँ। उसका नाम मुदस्सिर है, गोरीपेट केवलार डिस्ट्रिक्ट का बच्चा। वो बच्चे को मैं एक कन्नड़ा टू इंग्लिश एक डिक्शनरी दिया, उसको रोज़ हिम्मत दिलाता। जब रिज़ल्ट आया नीट का 2019 का, जब नीट का रिज़ल्ट आया, पूरे इंडिया में 17 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम लिखा और उसमें मोर देन 1.5 लाख मुस्लिम्स ने एग्ज़ाम लिखा और मुदस्सिर पूरे इंडिया के तमाम मुसलमानों का टॉपर बच्चा बना, पूरे इंडिया का। और वो आज कर्नाटक का जो नंबर 1 मेडिकल कॉलेज है ना, बैंगलोर मेडिकल कॉलेज, बैंगलोर मेडिकल कॉलेज का टॉपर है मुदस्सिर। सिर्फ मुदस्सिर नहीं है, हर साल की एक स्टोरी है। 2020 की बात करूँ, 2019 की बात कर रहा, 2020 की बात करूँगा। मुझे फ़ोन आते रहते हैं, सर ये बच्चा है, यहाँ पे करना है, वहाँ पे। एक फ़ोन आया किसी राजस्थान के किसी गांव से, बोले कि सर हम आपका वीडियो देखे हैं यूट्यूब पे, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे पास एक बच्चा है सर, हमारे एरिया के पास, वो जो पोल होता है इलेक्ट्रिक पोल के लाइट के नीचे बैठ के पढ़ता है वो, क्योंकि उसके घर एक रूम का घर है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। रोज़ शाम में जब इलेक्ट्रिसिटी आती है 7:30 बजे से शुरू करता है, रात के 2 बजे तक पढ़ता है सर। वो 12th कंप्लीट कर लिया है, उसका अब्बा उसको अब रोज़ कूली के काम पे भेज रहा है। अब्बा उसका रिक्शा ड्राइवर था, ढिकलने वाला रिक्शा, राजस्थान के किसी गांव की बात कर रहा हूँ मैं बोला कि मैं क्या कर सकता हूँ? सर वो बच्चा मेहनती है सर, एक मौका दीजिए वो बच्चे के लिए। मैं बोला कि भेजो बच्चे को। वो बोले नहीं सर हम भेज नहीं सकते, आपको टिकट भेजना पड़ेगा। तो मैं बोला कोई मजाक कर रहा होगा, मगर ज़बरदस्ती बहुत बार बार फ़ोन कर रहे थे। मैं एक टिकट दिया, जनरल की टिकट के पैसे भेजा उनको। एक बच्चा फटी हुई बनियान में आया, मेरे कॉलेज में बैठा हुआ था। मैं बोला तू कौन है? सर मुझे लोगों ने भेजा है वहाँ राजस्थान के गांव से। तो बच्चे का तो एडमिशन कर दिया मैं और बच्चा पढ़ना शुरू किया। जब रिज़ल्ट आया 2020 की बात कर रहा हूँ, मुदस्सिर अबरार की बात कर रहा हूँ, उसका यूट्यूब पे वीडियो है, उसका स्टोरी है, बहुत फेमस स्टोरी है। वो अबरार 665 मार्क्स लाया नीट में और राजस्थान स्टेट का टॉपर बना बच्चा, और नंबर 1 मेडिकल कॉलेज ऑफ राजस्थान में पढ़ रहा है आज। आपके तनीसंद्रा के एरिया में किसी स्कूल से पढ़ने वाला बच्चा, जिसके अब्बा चिकन की दुकान में काम करते हैं, डेली वेज है उनका 300 रुपये। मेरे पास जब बच्चे का एडमिशन के लिए लेके आए, बड़े फिक्र के साथ, बहुत मुश्किल है सर पढ़ाना आजकल, मेरे पास तो पैसे नहीं है, लेकिन बच्चा पढ़ तुम बोल रहा, लेकिन क्या पढ़ता उसको भी मालूम नहीं, मेरे को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता उन्हें पढ़ने नहीं पढ़ने। मैं बच्चे को बोला कि बड़ा क्या पढ़ना चाह रहा है? बच्चा बोलता मैं कुछ तो पढ़ूंगा सर, लेकिन मैं अब्बा के साथ डेली वेज पे काम नहीं करूँगा। तो मैं बच्चे को बोला कि तुम डॉक्टर बन बेटे। वो बच्चा हंस के बोला सर मैं कहाँ से डॉक्टर बनता हूँ। वो बच्चे की मुदस्सिर की बात करूँ जो 2023 का रिजल्ट है,
आप जाइए यूट्यूब पे, कहीं पे भी देख लीजिए वो बच्चे के बारे में। यहीं पे किसी स्कूल से पढ़ा था बच्चा वो। पहले 1 साल तो मुश्किल थी कि वो बच्चे को ये मैं भरोसा दिलाऊं कि बेटा तू भी ज़िंदगी में कुछ कर सकता है। बच्चा भरोसा नहीं करता था, मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे सामने सिर्फ एक चीज़ दिखती है सर, घर के सामने लोग जिसके पास अब्बा कर्ज लिए थे वो घर के सामने ठहरते रोज़ गालियाँ देते हैं, और घर के परेशानियाँ मुझे मालूम है सर, हम क्या भी नहीं कर सकते सर, हम गरीब लोग हैं। वो बच्चे को हमेशा हिम्मत दिलाता, बोलता कि बेटे तेरी ज़िंदगी तेरे अब्बा की वजह से नहीं बनेगी, तेरी मेहनत से तेरी ज़िंदगी बनेगी। और 2023 का रिजल्ट आया। पूरे बेंगलोर की बहुत बड़ी हिस्ट्री है। बेंगलोर में कितने लाखों लोग रहते हैं मालूम है ना। यहाँ पे ये शहर प्रेस्टीज का शहर है, यहाँ पे इंडिया बिल्डर्स रहते हैं, यहाँ पे कितने बड़े बड़े बिल्डर्स हैं। पूरे बेंगलोर की हिस्ट्री निकाल लीजिए आप। एक बच्चा बताइए पूरे बेंगलोर की हिस्ट्री में जो एम्स में एडमिशन लिया है। वो मुदस्सिर है जो चिकन की दुकान में काम करने वाले का 300 रुपये पे काम करने वाले का बेटा है, जो आज एम्स में पढ़ रहा है। पूरे बेंगलोर की हिस्ट्री में आज तक कोई बच्चा नहीं गया मुसलमानों का। मैं क्या बोल रहा हूं आपको, व्हाट एम आई सेइंग, इट इज इममटीरियल। इसकी अहमियत नहीं है, इसकी कोई अहमियत नहीं कि आप क्या करते हैं। किस चीज की अहमियत है कि आपका बच्चा क्या करता है और उस बच्चे के लिए आप क्या फिक्र देते हैं, ये इसकी अहमियत है। आपके पास कैसे ख्वाब होने चाहिए। आज बेंगलोर का कोई मेडिकल कॉलेज ऐसा नहीं है जहां पे फाल्कन का बच्चा नहीं पढ़ता, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा कोई मेडिकल कॉलेज, एक नहीं 5 नहीं, एक कॉलेज में, अंबेडकर मेडिकल कॉलेज जाइए वहाँ पे 10 नहीं 15 बच्चे फाल्कन के दिखेंगे आपको। ईस्ट पॉइंट मेडिकल कॉलेज जाइए वहाँ पे 15 नहीं 20 बच्चे मिलेंगे आपको फाल्कन। अटल बिहारी वाजपेयी चले जाइए, हर साल बच्चे फाल्कन के पढ़ते हैं। बेंगलोर मेडिकल कॉलेज जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी फाल्कन अपना कैंपस नहीं बनाया, क्योंकि हमारे पास प्रायोरिटी बहुत क्लियर है। ये मुस्तकबिल है बच्चों का, उसके लिए काम करना है। यहाँ पे ये स्कूल वाले जो चीज़ें कर रहे हैं ना, मुझे दिल से खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। मेरे दिल से दुआएं निकली अल्हम्दुलिल्लाह इनके लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह फिक्र करने वाले लोग हैं। ये काम आप तमाम को करना है, अपना रोल अदा करना है। एज ए पेरेंट, एज ए वालिद, मेरे वालिदा पढ़ी लिखी वालिदा नहीं है। मेरी वालिदा को आज भी मालूम नहीं है कि मेरे कितने डिग्रीज हैं, मेरी पीएचडी किस में है मेरी वालिदा को मालूम नहीं है, मेरी मास्टर्स किस में, मैं लंदन के किस कॉलेज में पढ़ा मालूम नहीं है, किस यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है। लेकिन यकीन मानिए मेरी वालिदा, मैं हमेशा बोलता हूँ, हर जगह बोलता हूँ, आज मैं जो कुछ हूँ मेरे वालिद और वालिदा की वजह से हूँ। और ये वो फिक्र है, और ये हर वालिदा की बात है, हर वालिद की बात है। इस अभी आते आते शायद यहाँ पे आपका मदरसा मंसूरा है ना सामने, उस मदरसा मंसूरा में एक हज़रत अरबी पढ़ाते हैं। पहले अपने बेटे को लेके आए मेरे पास, बोले कि सर मेरा बच्चे को पढ़ाना है, हम तो हज़रत हैं, हमको क्या मालूम, कुछ पढ़ा लीजिए बच्चे को। वो बच्चा जब पढ़ा मेरे पास, बेंगलोर मेडिकल कॉलेज में MBBS सीट हासिल किया वो बच्चा। फिर दूसरे बेटे को लेके आए, सर वो बच्चा तो पढ़ता ही नहीं, बोलता क्या तो करिए उसको पढ़ाइए। वो बच्चा पढ़ा, किम्स मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। 2 बेटे, दोनों के दोनों डॉक्टर। उसी मदरसे में एक आंध्रा के एक हज़रत हैं, जनाब हैं, जो इडली बेचते हैं, कैंटीन चलाते हैं वहाँ पे। देख मंसूरा मदरसा मालूम ना, समर इंटरनेशनल स्कूल, वो सब यहाँ पे दिखते रहता है, वहाँ पे कैंटीन चलाते हैं। पहले बेटी को लेके आए मेरे पास, वो बेटी MBBS करी, आज MD कर रही है। फिर बेटे को लेके आए, वो बेटा इंजीनियरिंग किया, नाउ ही इज़ वर्किंग फॉर MNC। फिर और एक बेटे, वो MBBS कंप्लीट कर रहा है अभी। फिर एक बेटी को लेके आए, वो भी MBBS कर रही है। एक घर में 4 बच्चे, चारों के चारों सक्सेसफुल। कौन बोलता है कि वो आदमी गरीब है? देखिए, आपके बच्चों का तकदीर, मुस्तकबिल के लिए अगर आपको फ़िक्र करना है तो कोई प्रॉपर्टी बनाने की फ़िक्र मत कीजिए कि मैं 4x4 की जगह ख़रीदूँगा, हत्ता ही नहीं। बच्चों को मैं पढ़ाऊँगा, अच्छे से अच्छा पढ़ाऊँगा, आगे से आगे बढ़ाऊँगा, ये फ़िक्र अपने अंदर पैदा कीजिए। मेरे वालिद मुझे हमेशा यही फ़िक्र देते, बेटे मैं बीदर से हूँ, बहुत बैकवर्ड एरिया से हूँ, उर्दू मीडियम का बच्चा हूँ, लेकिन मेरे वालिद हमेशा मुझे बोलते बेटे कभी ज़िंदगी में अपने लिए मत जी, अपने लिए जीने वाला मत बन, दूसरों के लिए कुछ करने वाला बन। जब हाथ ऊपर रहता ना, जब किसी के लिए कुछ करने वाले बनते ना, तुमको उतनी मेहनत करनी पड़ती है, सबसे आगे रहना पड़ता है। सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला ही सबसे आगे रहता है और देने वाला बनता है। अपने बच्चों को लीडर्स बनाना है, आप तमाम को उसकी फ़िक्र करना है।
इनोवेशन की बात कर रहे थे यहाँ पे, रोबोटिक्स की बात कर रहे थे यहाँ पे। ये तमाम तर चीज़ें कब होगी? जब आप फिक्र करेंगे अपने बच्चों के मुस्तकबिल को लेके इंशाल्लाह। हमारे पास कोई इंस्पेक्टर आने वाले थे, मैं एक प्रोग्राम में था कुवैत में, वो लोग वेट कर रहे थे वहाँ के कुवैत के एम्बेसडर का कि वो आके इनाग्रेशन करे। वो जनाब बोल दिए कि हम कोई प्रोग्राम में नहीं आते। तो एक मेरा स्टूडेंट आया, आके मेरे से मिलने के लिए आया, मिल के गया, सब परेशान हो गए कि एम्बेसडर किससे मिलने आया। वो मेरा स्टूडेंट था जो वहाँ का एम्बेसडर था। पूरे लोग शौक है। आप लोगों को मालूम है एम्बेसडर मतलब एक इंडियन फॉरेन सर्विसेज मालूम है? पता नहीं। एक मेरे पास सिविल सर्विसेज एकेडमी चलती है, यूपीएससी की कोचिंग करता हूँ मैं। पूरे हिंदुस्तान से बच्चों को उनका खाना, रहना, पढ़ना, हर चीज़ फैल्कन अपने तौर पे पढ़ाता है। हर चीज़ फ्री होती है पूरे हिंदुस्तान भर के। ऐसे कई बच्चे हैं जो हमारे पास से कोचिंग लेते हैं। एक बच्चे को मैं ऐसे ही एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा था, मेरे वालिद मुझे बोले कि बेटे तू पैसे नहीं है तेरे पास, तू शुरू की बात कर रहा हूँ। कुछ नहीं है यहाँ बीदर, मैं एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा था तो बीदर में एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए गया। बोले कि बीदर की हिस्ट्री में आज तक कोई बच्चा यूपीएससी क्लियर नहीं किया है, आईएएस आईपीएस नहीं बना है, तो क्यों अपना पैसा वेस्ट कर रहा है? मैं बोला कि हालात ख़राब हैं, बज़ाहिर हालात ख़राब हैं, थिंग्स आर नॉट राइट, कि मैं रोने वाला बनूं क्या उनको करेक्ट करने वाला बनूं? मैं छोटा एफर्ट डालना चाहता हूं, कुछ बच्चों को यहाँ से ले जाऊंगा, मेरे पास कोचिंग करूंगा। वो बच्चे एक दो बच्चों को सेलेक्ट किया, उसमें से एक बच्चे के अब्बा बोले कि सर आप कोचिंग फ्री दे रहे हैं, रहना फ्री दे रहे हैं, खाने के पैसे चार्ज कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास जॉब नहीं है, मैं खाने के भी पैसे नहीं दे सकता। मैं बोला कि 50% तुम दो, 50% मैं दूंगा। वो बच्चे को लेके आया मेरे पास और वो बच्चा मेरे पास कोचिंग किया। पता है क्या है वो बच्चा आज? आईपीएस ऑफिसर। मालूम होता है आईपीएस ऑफिसर क्या होता है? ही इज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कन्नूर डिस्ट्रिक्ट का, केरला कैडर का आईपीएस ऑफिसर है बच्चा। वो बीदर की तारीख बदल गई। पहला बच्चा जो आईपीएस बना, उसको जब बच्चा मेरे पास हॉस्टल में रहता था, उसको देखने के लिए उसका छोटा भाई आता था। वो उस वक्त बेंगलोर में पढ़ाई कर रहा था। वो बच्चा मोटिवेशन लिया और वो बच्चा आज कर्नाटका कैडर का आईएएस ऑफिसर है। पूरे इंडिया में आज भी चेक कर लीजिए, पूरे इंडिया में कोई ऐसा घर नहीं मिलेगा, पूरे इंडिया में बोल रहा हूँ, एक मुसलमान घर जहाँ पे एक भाई आईएएस है और दूसरा भाई आईपीएस है। चेंज, पावर ऑफ चेंज, कि एक आदमी अगर ख्वाब देखे, बड़ा ख्वाब देखे, किसी एक को हिम्मत करनी है, ऐसे घरों में आप लमाओं को हिम्मत करनी है, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ खास करूँगा। इंस्टीट्यूशंस को अपना रोल अदा करना है कि हम चेंज मेकर बनेंगे इंशाल्लाह। बच्चों को पढ़ाना नाम के लिए पढ़ाया जा सकता है, लेकिन इन बच्चों को लीडर्स बनाने के लिए अगर पढ़ाना है तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। मुझे लग रहा है वो आप तमाम कर रहे हैं यहाँ पे माशाल्लाह। बहुत खुशी हुई मुझे यहाँ पे आके, बड़ी खुशी हुई। आज फैल्कन पूरे हिंदुस्तान में 100 सेंटर्स आईएएस के फ्री चलाता है पूरे हिंदुस्तान भर में, जहाँ पूरे इंडिया में आज फैल्कन के सेंटर्स चलते हैं। मेरा दिल्ली में मेरे ब्रांचेस शुरू हैं, हरियाणा में है, राजस्थान में फैल्कन खुद कॉलेजेस चलते हैं, बेंगलोर में अल्हम्दुलिल्लाह 7 जगह पे फैल्कन के कॉलेज चल रहे हैं। लेकिन मेरी तरक्की ये नहीं कि मेरे कॉलेजेस हैं, हज़ारों बच्चे फैल्कन में पढ़ रहे हैं, ये मेरी तरक्की नहीं है। मुझे सेटिस्फैक्शन इससे नहीं आता कि बहुत पैसा है आज मेरे पास, सेटिस्फैक्शन की बात वो नहीं है। सेटिस्फैक्शन आज ये है कि मेरे पास आज लोग ऑटो रिक्शा मेरे कॉलेज के नीचे खड़ा करते हैं, खड़ा करके बच्ची को ऊपर लाते हैं, लाके बोलते हैं सर मेरी बच्ची है, डॉक्टर ही बनाना है मेरी बच्ची को, दूसरा क्या भी बनाना नहीं है। ये मेरे लिए कामयाबी है कि अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के अंदर हिम्मतें आ गई कि एनीबडी एंड एवरीबडी कैन अचीव एनीथिंग। ये असल कामयाबी है हमारी। ये उस वक्त आता है जब लोग भरोसा करते हैं। वो उस भरोसा कब आता है? किसी को देखने के बाद भरोसा आता है कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी, मेरा बच्चा भी कर सकता है। ये ख्वाहिश अपने अंदर पैदा कीजिए अपने बच्चों के लिए कि वो अपने बच्चों को बड़ा ख्वाब देखें। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि अगर आप अपने बच्चों को छोटी बात बोलेंगे, क्योंकि माँओं की हमेशा प्रॉब्लम होती है। माएँ बोलती है ना, जितनी चादर है उतना पैर फैला, बोल के बोलते माँ, बोलते ना। कितने लोग बोले अब तक, जितनी चादर है उतना पैर फैला? बोले शर्मा के हाथ में उठा रहे हैं। अच्छा बोले, ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब ख्वाहिश, बच्चे को ख्वाब देने की बात होती है ना, बच्चे को ड्रीम देने की बात होती है, बच्चों को हमेशा ये बोलिए बेटे और बेटी, तो जितना बड़ा ख्वाब देख सकता है
कितना बड़ा ख्वाब देख सकती है तू, ख्वाब देख, इंशाल्लाह वो तेरे को देने वाला है, हम तेरे को सपोर्ट करने वाला है इंशाल्लाह। ये हिम्मत दिलाइए बच्चों को, कोई चीज़ बड़ी नहीं है। पैसे स्कूल को जाने के लिए पैसे नहीं थे APJ अब्दुल कलाम के पास, रोज़ खुद वो जाके पेपर फेंकते थे घरों में, और वो इंडिया के प्रेसिडेंट बने, साइंटिस्ट बने। अल्हम्दुलिल्लाह आपके हालात बेटर हैं, आपका बच्चा रोज़ जाके काम करके स्कूल को नहीं जाता, आप भेज रहे हैं बच्चे को। आप अपने आप से मायूस मत होइए, ऊपर वाले से मायूस मत होइए। यू ऑल हैव द, बच्चे जो है ना हीरे हैं आपके, भरोसा कीजिए, उनको तराशना है। आप सही जौहरी उनके पास पहुँचे हैं। You have come to the right place, I believe. Inshallah, they will take care of your children. I'm so glad that I got an opportunity to be here in front of you all. मेरी खुशनसीबी है कि आज मैं आप तमाम से मिलने का, आप तमाम से बात करने का मुझे मौका मिला। कभी भी कुछ भी रहा, बच्चों के लिए ऑलवेज अवेलेबल, आपकी खिदमत में, आपके हुक्म पे इंशाल्लाह रहेंगे। कि ये टीचर्स आपके, कभी भी बोल रहा हूँ मैं आपको, बच्चों को आप प्यार करते हैं, एज ए माँ बहुत प्यार करते हैं, माँ से बढ़ के प्यार कोई दुनिया में नहीं करता। उसके बाद बाप सबसे ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन तीसरा अगर कोई मुकाम आता है वो तुम्हारे टीचर्स का आता है, यकीन मानिए। और उनकी भी इज़्ज़त करिए, उनकी भी अदब करिए इंशाल्लाह। बच्चों के अंदर अच्छी तरबियत देना आज के देश में सबसे मुश्किल चीज़ है। पढ़ाना तो हो गया है, लेकिन हमको अपने बच्चों को ऐसा डॉक्टर नहीं बनाना है जो बाद में किडनी चोरी करें और जेल में जाएं, फिर हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ऐसे डॉक्टर के साथ हम बच्चों को अच्छे अखलाक सिखाना है, अच्छी तरबियत अपने बच्चों को देना है। वी हैव टू गिव देम द गुड मॉरल कंडक्ट्स आल्सो, दैट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए पेरेंट, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ इंस्टीट्यूशन, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। विद दैट लास्ट सेंटेंस मोबाइल के ऊपर बोल के ख़त्म कर देता हूँ कि यहाँ पे कोई ऐसा पेरेंट है जो बोले कि शराब पीना अच्छी चीज़ है? कोई बोल सकता है? नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, गलत चीज़ है, बहुत गलत चीज़ है। कोई ये बोला कि सिगरेट पीना अच्छी चीज़ है? कोई बोलता? कोई भी नहीं बोलेगा। लेकिन और वो ड्रग्स बहुत ख़राब चीज़ होती है, बहुत ख़राब जानलेवा चीज़ होती है, कोई भी उसको अच्छा नहीं बोलता। अगर कोई किसी को मालूम हो जाए किसी का बच्चा ड्रग्स ले रहा था, खामोश बैठेगा, उसको रोकते हैं। क्योंकि जब आप पढ़े होंगे कि ड्रग ओवरडोज से लोग मर जाते हैं, वो क्यों मरते हैं मालूम? अगर रोज़ एक ही क्वांटिटी का आप ड्रग्स लेंगे तो फील नहीं होता, वो डोपामिन जो दिमाग में होता है वो एक मरतबा फील कराता है बच्चे को, अच्छा लगता है। लेकिन एक ही क्वांटिटी लेंगे तो फिर फील होना बंद हो जाएगा। तो वो ड्रग्स लेने वाला हमेशा अपनी क्वांटिटी को बढ़ाता है, इतना ले लेता है कि एक दिन मर जाता है। ये सेम कॉन्सेप्ट है, डोपामिन बोलते हैं, जो आदमी को फील कराता है अच्छा। वेरिएबल डोपामिन के कॉन्सेप्ट पे आपका इंस्टाग्राम बनता है, आपका फेसबुक बनता है, आपका क्या जितने भी प्लेटफॉर्म है ना, पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म आपके ये वेरिएबल डोपामिन के कॉन्सेप्ट पे बनते हैं कि कैसे बच्चों को एडिक्शन, ड्रग को एडिक्शन बोलते हैं, स्मोकिंग को एडिक्शन बोलते हैं, शराब को एडिक्शन बोलते हैं। आज का सबसे बड़ा एडिक्शन आपके बच्चों के लिए जो अगर खतरा है तो वो है, व्हाट इज द एडिक्शन? मोबाइल फोन एडिक्शन। और एक मरतबा बोलिए, अपने बच्चों को बचाना है, फ्यूचर को बचाना है, जनरेशन को बचाना है, ये आप तमाम की जिम्मेदारी है। बच्चों को बचाना है उस खतरनाक एडिक्शन से। यकीन मानिए ये एडिक्शन है, आपको आज समझ में नहीं आता। बच्चा 2 मिनट देखते बोलता, महसूस नहीं होता उसको कहाँ पे आधे घंटा हो गया है, कब 1 घंटा हो गया है, कब 2 घंटे हो गए हैं। मोबाइल छीनने से बच्चे आज परेशान हो जा रहे हैं, रेस्टलेस हो जा रहे हैं। खाना खिलाना है तो मोबाइल की ज़रूरत पड़ रही है पेरेंट्स को। इससे बड़ी शर्मनाक बात कुछ नहीं है। हम अपने बच्चों को तैयार करेंगे आगे के जो परेशानियां हैं ना, उससे बच्चों को दूर रखिए गलत चीज़ों से। इंशाल्लाह आपके बच्चे बड़े होंगे तो वो समझदार हो जाएंगे, इंशाल्लाह दे विल मैनेज। लेकिन जब तक वो 18-20 साल के नहीं होते, वो आपकी जिम्मेदारी है। विद दैट आई थैंक यू ईच वन ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।